पीछे 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 हे पकड़ भैया हे गार्ड को सदर कराने की अनुमति चाहता हूँ। Good. Stand for a try. Next up, 16,500 meters square. Sir, there are 3,500 students making their future brighter with the institute, and among of 3,500 students, there are 150 cadets in the NCC company, 97 SG and 53 SW, sir. If we talk about this area, sir, first of all, sir, this is our main gate. We enter it from the south side. Sir, after moving 30 meters ahead, this is the maternity hospital for the cadet and for the other people. So after moving this way, after moving 60 meters ahead, we have to turn left to enter in the campus. Sir, after entering the campus, this is the NCC storeroom. We used to keep our things and instruments here. After moving this way, this is our NCC office. There are 15 authorized rifles, 4 maps, compass, and a lot of things for the cadets. After moving this way, this is our education department. Our education classes running here. In the same building, there is a pharmacy classes also running. After moving this way, after 12 meters ahead, this is our well-maintained cycle stand. After moving this way, sir, this is our flag-based area. We used to flag base. Sir, after moving this way, at the right side of flag base area, this is our agricultural department. There are a lot of seats and the practical used to be happen there. After moving this way, this is our Gramarshi in the memory of the founder of this college, Pandit Ramkumar Pandey, means Gramarshi Smriti. After moving this way, this is our principal office, and this is our decent library, most silent place of the Gramarshi, with 52,000 literature and the cultural books. Sir, this is the treasurer of Gramarshi, means fee office. Students and cadets used to pay their fee here. After moving this way, and we found another gate to enter in this. So this is our scout guide, another force in the blue uniform to support our backbone and the society also. So this is our art and science department. In the middle of art and science department, this is our statue of Gramarshi, means the statue of founder of this college. Not even this college,
about approx 10 colleges in the Akbarpur. Sir, as we know, worship plays an essential role in the progress of academic and the human also. Then we have two temples. First one is considered as the Radha Krishna temple, and the second one is Sai Baba temple. After moving this way, as we know, important for the physical and mental fitness. This is our volleyball ground, and this is our obstacle area. We used to at least one time in a week, and in the presence of Lieutenant Dr. Harish Kumar Singh sir. After moving this way, this is our parade ground. It is 80 into 50 meters, and now at least we are at the most beautiful atmospheric and the place Kamal Sarovar. As we know, lotus is the national flower of the India. Sir, my briefing is Indian. Thank you, sir. जय साहब, श्रीमान यूपी 23 SW मुस्कान तिवारी, ग्रामर सिंह पीजी कॉलेज, हृदय की गहराई से आपका स्वागत करते हैं और नमन करते हैं। श्रीमान, अब मैं अपनी 11 कंपनी और अपने विद्यालय की विश्लेषण की अनुमति चाहती हूँ। श्रीमान, अकबरपुर और जनरल चौराहा के मध्य हमारा मेन रोड आता है, जहाँ से हम प्रवेश करते हैं। यहाँ से प्रवेश करने के पश्चात हमारा एक चिकित्सालय जो कि 30 मीटर की दूरी पे है। श्रीमान, यहाँ से आगे बढ़ने के पश्चात हमारा 7 मीटर की दूरी पे हमारा एक छोटा द्वार मिलेगा, जहाँ से हम प्रवेश करने के पश्चात हमारे बाईं ओर हमारा एनसीसी स्टोर रूम है, जहाँ पे हमारे कुछ उपयोगी सामान रखे हुए हैं। श्रीमान, उसके बगल में ही एनसीसी ऑफिस, जहाँ पर 15 राइफल 4 मैप हमारी सिखलाई के लिए उपयोगी है, रखे हुए हैं। श्रीमान, उसके बगल में ही हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट, जहाँ पर हमारी शिक्षाएं अन्य। श्रीमान, आगे बढ़ने पे हमारा साइकिल स्टैंड, जहाँ पर हमारे वाहन रखे जाते हैं। श्रीमान, हमारे एनसीसी ऑफिस के ही सामने हमारा फ्लैग बेस है, जहाँ पर हमारे एनसीसी का झंडारोहण होता है। श्रीमान, इसके एनसीसी इसके दाहिनी ओर हमारा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट यानी कि कृषि विज्ञान है, जहाँ पर हर वर्ष नए उपयोग करवाए जाते हैं। श्रीमान, थोड़ा आगे बढ़ने पर हमारा ग्रामर समिति का है, जो कि हमारे अकबरपुर के और अन्य विद्यालयों संस्थापक हैं, जिनकी स्मृति के लिए मूर्ति और उनके कुछ वर्ष आज भी स्मृति के लिए है। श्रीमान, उससे आगे बढ़ने पे हमारा प्रिंसिपल ऑफिस है, और उसके साथ साथ ही हमारा सबसे शांत और मनोहर लैब पुस्तकालय है, जिससे थोड़ा आगे बढ़ने ही हमारा प्रेस ऑफिस है, जहाँ पे हमारे शुल्क जमा होते हैं। श्रीमान, उससे आगे बढ़ने पे हमारा एक छोटा द्वार मिलेगा, और उससे प्रवेश करने के पश्चात हमारा एक नीले रंग की वर्दी में एक अन्य सेना मिलेगी, जो कि स्काउट गाइड है। श्रीमान, उसके आगे बढ़ने पे हमारा आर्ट डिपार्टमेंट है अपने पास एक्सेस में कहीं से किराए भी मिल जाएगा, जो भी आपको दिखेगा वो देता रहेगा। मिरर वगैरह सब लाइन पे जहाँ हम लोग सिविल में रह रहे हैं, वहाँ से निकल गए कैंटोनमेंट में हम लोग का नया ऑफिस है, तो वहाँ पे हमारे बच्चों की ट्रेनिंग के लिए बहुत बड़ा इलाका मिल जाएगा। ड्रिल कराना हो या कुछ भी कराना, ये तो बहुत बड़ी बहुत एक मैंने
सबसे पहले आपका इस ग्रामोदय आश्रम भूत विद्युत कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर राकेश तिवारी और इस विद्यालय के स्थापित 11 कंपनी कमांडर लेफ्टिनेंट डॉक्टर हरीश कुमार सिंह की तरफ से और इस विद्यालय प्रांगण पूरे विद्यालय परिवार और सभी के स्पीकर की तरफ से आपका इस विद्यालय और इस कंपनी में हार्दिक स्वागत वंदन व अभिनंदन करता हूँ। मैं कैडेट अखिलेश तिवारी अपनी सहमत विचार आज उपस्थित हूँ आज का इस कार्यक्रम का आज की कार्यक्रम के संचालन के रूप में। श्रीमान महोदय अब अगली कड़ी है आप सबको पता है अतिथि देवो बिना अतिथि का स्वागत किए किसी भी कार्यक्रम को सफल नहीं बनाया जा सकता और इसी परंपरा का पूर्ण रूप से पालन करते हुए आज हमारे बीच में कैडेट पूजानंद गोस्वामी उपस्थित हैं। अपना भाव कीजिएगा, जोरदार ताली से स्वागत कीजिए। पीछे बगल था देने बॉल है कथन वचन से प्रीति कर जो मुखरित हो संत, कथन वचन से प्रीति कर जो मुखरित हो संत, धन्य सभासद हो गए धन्य हो गया मंच। और इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आदर्श पुरुष भगवान श्री राम के अयोध्या आगमन पर किस प्रकार नर नारी व्याकुलता से अपने आराध्य देव भगवान श्री राम का स्वागत करते हैं, उसी की एक सुंदर झलक आपके समक्ष सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर कार्यक्रम सफल निहित उद्देश्य आप सभापति मिल गए घोषित हृदय समेत। और इसी कड़ी में दीपिका वर्मा और अंजलि तिवारी कौशल्या
प्यार है आँखियाँ में काजल है, दिल में प्यार है आँखियाँ में काजल है, वो मानो राजस्थान है, जगह जगह भी काजल है। I would like to call Anjali and his team. For the absolute performance under Boomer and Roland Dola. कि रेगिस्तान में सूखी झाड़ियां भी हरी हो जाती हैं, रेगिस्तान में सूखी झाड़ियां
लेफ्टिनेंट डॉक्टर हरीश कुमार सिंह सर को बुलाना चाहूँगा कि वो आए और कमांडिंग ऑफिसर सर के बारे में कुछ कहें और इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। धन्यवाद। थैंक यू कैबिनेट। आज के एनसीसी 11 कंपनी का जो रिसर्च कार्यक्रम इस शुभ अवसर से हमारे मुख्य अतिथि कर्नल एम.के. सिंह साहब जो कि 65 बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर हैं, आप हमारे बटालियन के साथ हम लोगों के तरफ से आपको तरफ से हार्दिक बधाई। साथ में सुबेदार सिकंदर साहब बैठे हुए, आपका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। और सुनील साहब जो कि अपनी ऊर्जा और अपने चक्की से हमारे कालियों को, हमारे कैडेट्स के दिल में वास करते हैं। आपको हम लोगों को आपका हमेशा आपको भी हार्दिक बधाई। और साथ में हवलदार राम बहादुर साहब, आप पूरा नाम सर क्षत्रिय साहब, और साथ में हमारे साथ हवलदार साहब बैठे हुए हैं राजकुमार साहब, आपका भी हार्दिक स्वागत है। सुबह से आप आकर के साथ ये कर रहे हो, कर रहे हैं, कर रहे, बहुत ही मदद मिलता है। हमारा परिवार है। आज साहब को बहुत ज़्यादा हमारे बच्चों को ट्रेनिंग और शायद सबसे अधिक आपको कैसे कैसे पहननी है, कैसे क्या शक्ति के साथ आपको सिखाता रहता है। अभी एचडी यूनिवर्सिटी में भी आपने का वहाँ पर दिखाया। तो एक टीम है साहब, मैं कमांडिंग ऑफिसर साहब को ये बताना चाहता हूँ कि आपसे 55 किलोमीटर दूर ये 11 चौक की जरूर बैठी है, लेकिन सर आपकी हृदय की बहुत अच्छी है। मैं आपको आने वाले टाइम में हृदय के साथ आपको जोड़ूंगा, मैं इतना टैलेंट यहाँ पे लूँगा। अभी मेरे 2 आरटीसी की जो बच्चे हैं सर, इसके पहले तो शूज हुए और इसमें अभी संयोग से यहाँ पे नहीं आ पाया, थोड़ा एक्सीडेंट उसका हुआ था घर में, आज रो रहा था सुबह की। कमांडिंग ऑफिसर साहब आ रहे हैं, मैं मिस कर रहा हूँ, मैंने कहा ठीक हो जाओ, हम साहब से मिलाएंगे। साहब वो कल्चरल प्रोग्राम इतना बढ़िया ढोलक हारमोनियम और तबला बजाता साहब कि 65 पूरे प्रयागराज ग्रुप में जितने भी जिले हैं जितने साहब सारे लोग जब घंटे एक लड़का हुआ था और प्रयागराज ग्रुप की इज्जत हो। तो हम आने वाले टाइम में सर हमारे क्षेत्र में टैलेंट बहुत है, हम बोलने का काम करेंगे गाँव में जाकर के, और बहुत पैसा होना लगता है उसको और मैं वादा इतने कहने से काम नहीं करता, मैं उसकी चीज करूँगा, मैं खुद अपने पास से करूँगा। आइए सर, सुदूर अंचल में हमारे संस्थापक जी ने एक स्वप्न देखा था, 1982 में इस कॉलेज को स्थापित किया था। तब BNK भी हुआ करता था, साकेत भी, और सुल्तानपुर में KIT भी हुआ करता था साहब। इसमें अंचल की जो महिला उस समय उन्होंने स्वप्न देखा, बताना चाहते लोग सस्पेंड किए हैं, तो उन्होंने इस कॉलेज को स्थापित कर दिया। और आज ये कॉलेज इतने बड़ा था कि इसके छोटे 5 कॉलेज हो गए, और ये 3500 एग्रीकल्चर, BEd, BTC, फार्मेसी, हॉस्पिटल, बहुत सारे कोर्स यहाँ पर है, बहुत सारे लड़के लाभ लेते हैं। और आप हर गाँव में हमारे जो बच्चे हैं लगभग 2 बच्चे हो गई है, वो भी का काम इस ग्रामों में आकर मिल गया था। उन्होंने जो इस समय हमारे समन्वय के रूप में है श्री हरिओम पांडे, क्योंकि इसके पहले आपके सांसद हुआ करते थे लोकसभा के, इस समय वर्तमान में वो अकबरपुर अयोध्या क्षेत्र के LLC है, विधान परिषद सदस्य है। वो हो सकता थोड़ी देर में आए, आपसे मुलाकात हुई, वो बहुत एक्साइट थे आपसे मिलने के लिए, और निश्चित रूप से आपको करेंगे अभी आपको मैं चाहता हूँ अपने ब्रेक को इतना रखूँ, खुद चाहूँ लगता है नहीं लगता, लेकिन जितना इस्तेमाल करते रहोगे, खींचते रहोगे, उतना शार्प होते जाएगा। ब्रेन इज दैट, आपका दिमाग कुछ भी कर सकता है, और आपका भुजा आपके दिमाग से ही होता है। मैं देखने में हैंडसम सलमान खान लगूं और ब्रेन नहीं होगा, सब लाभ मार के आउट कर देगा। आप देखो बॉडी बिल्डर है, ओके रखते हैं स्टेज पे 10 मिनट का उनको बारवाही मिल जाता है, उसका कोई नहीं पूछता है। अंडरस्टूड?
गुस्सा उसको है जो मल्टी टैलेंटेड है, जो आगे निकलते जाता है, जो दिमाग में कमा सकता है। सचिन तेंदुलकर का नाम सुना होगा आपको। सचिन तेंदुलकर क्या है? पसीने से अपना क्रिकेट में आज वो क्या है? वो मल्टी टैलेंटेड जगह पे पढ़ लिख के इकोनॉमिक्स में और बहुत जगह इन्वेस्टमेंट कर रखा है, कई लोगों को नौकरी दे रखा है, अलग अलग वेंचर खोल रखा है। धोनी के बारे में सुना है? धोनी क्या कर रहा है? किसी ने जानने की कोशिश करी? अब गेम खत्म हो गया, पैसा खत्म हो गया, उसके बाद क्या करेगा? वेंचर में लगा। उसी तरह आप एक टैलेंट पकड़ो, उसको उसमें महारत हासिल करो, लेकिन साइड बाय साइड मल्टी चीजों में अपने आप को इन्वेस्ट करके रखो। और ये बातें मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ बेटा, इंडिया इज ए 4 ट्रिलियन इकोनॉमी। 2026 तक हम 6 ट्रिलियन इकोनॉमी को रीच करने वाले हैं और 2029 से 30 के बीच में हम मोर देन 10 ट्रिलियन इकोनॉमी को काम करेंगे। रोटी होता है, रोटी का एक साइज होता है। आज अमेरिका सुपर पावर है, क्योंकि उसके पास 25 ट्रिलियन इकोनॉमी है। दूसरा बढ़ता हुआ पावर चाइना है, जिसके पास 15 ट्रिलियन इकोनॉमी है। हम तेजी से बढ़ते हुए इकोनॉमी में हमारे पास 4 ट्रिलियन है, हम 6 ट्रिलियन होंगे, 10 ट्रिलियन होंगे। आज हम वर्ल्ड में तीसरे स्थान पे हैं और बहुत जल्दी हम पहले स्थान पे भी पहुंच जाएंगे। और उस पावदान पे जब हम पहुंचेंगे तब आप लोग हर क्षेत्र में आप लोग कहीं न कहीं सेवारत होंगे। तो आप लोगों के ऊपर कारभार बहुत है और वक्त आज तो लोग रसोगे, लेकिन मैं इतना एश्योर करता हूँ कि जब तक तुम 30 या 40 साल के ऊपर के होगे तो तुमको सरप्राइज नहीं होना चाहिए कि यहाँ यूके से अंग्रेज हमारे ऑटो चालक बन जाए। उस दिन की तैयारी करनी है, यानी उससे बेहतर बनना है, इकोनॉमिकली, सोशली, सिक्योरिटी वाली और स्ट्रक्चर की ओर। तो ये आप कर सकते हैं और उसका गढ़ हमारे रूरल एरिया में शहरी बाबू लोग जो होते हैं अधिकतर कमजोर बन जाते हैं, क्योंकि उनको ऐशो आराम की आदत पड़ जाती है। समझ में आ रही है? तो तुम्हारे पास कुछ कहानी तो रहेगी। देखो बेटा, हम मेहनत करके अपने बच्चों को बताओगे कि हम मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे हैं, और उसमें जो एक्साइटमेंट है, उसमें जो तुम्हारे पेट में जो बटरफ्लाई है, उसका अंदाजा तुम अभी नहीं लगा सकते। तो अभी मैं आप लोगों से गुजारिश करूँगा कि आप लोग मेहनत करें, हर फील्ड में आगे बढ़ें। एंड मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग का वैकेंसी थोड़ा सा कम हुआ है क्योंकि रीस्ट्रक्चरिंग चली है, लेकिन इंश्योर करता हूँ आप लोग ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे तो आप लोग का प्रमोट का स्ट्रेंथ यहाँ पे और बढ़ जाएगा। आप लोग 150 से 160 में आ जाओगे। ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट एंड आप लोगों से मेरी बहुत उम्मीदें हैं। मैं जो बात कर रहा हूँ उसको आप लोग ध्यान से रखिए, पढ़िए, पढ़ना जरूरी है। 10 दिमाग वालों को हम एसएससी में नहीं रखना चाहते और उसको बढ़ावा देंगे। और जब मैं आता हूँ ऐसे इवेंट में आप लोग पार्टिसिपेट करोगे, आप लोग का नाम मैं नोट करके जाऊँगा। कल को कैंप में भेजना हो या कहीं प्रोजेक्ट करना हो तो वो मैं वहाँ बैठे बैठे एज ए सीओ खुद समझ में आ रही है। बाकी मेरा नंबर आप लोगों को दे दूंगा। अभी मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रहा हूँ, बनाया नहीं हूँ, रोक के रखा हूँ, जिसमें सारे आपके ये जो अपॉइंटमेंट्स हैं उन अपॉइंटमेंट्स का ग्रुप रहेगा, जिसमें एनो सर, मैं और अपॉइंटमेंट्स रहेंगे। आप लोगों के पढ़ने के मटीरियल जो हैं आजकल PDF फाइल में आते हैं वो मैं डालता रहूँगा। मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जितने अपॉइंटमेंट्स हैं आप लोग का जो व्हाट्सएप ग्रुप बना है बहुत अच्छा माध्यम है, सबको बांटें, सबको बताएं। समझ आ रही है? तीसरी वाली कोई क्वालिटी ना रखें कि मुझे पता चल गया मैं
आप लोग लीडर हो। लीडर का मतलब होता है कि ठीक है कोई बात नहीं, आप पढ़े, कोई आपसे ज़्यादा नंबर पा गया तो उसमें आप छोटे नहीं हो, वो आपको रेस्पेक्ट ही देगा। अंडरस्टूड? तो हम जब आपको बांटते हैं तो प्लीज सबको सर्कुलेट करें, क्योंकि मैं सबको रख के व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं हो सकता, ऐसे करने लगूंगा तो मेरे पास खाने का भी टाइम नहीं होगा। समझ में आएगी? तो कृपया करके अभी पढ़ने का वक्त आ गया, आपके एग्जाम भी चल रहे हैं, आप लोग मिलजुल के पढ़िए, ग्रुप बना लीजिए, शेयर कीजिए। हम उसमें PDF फाइल भी डालेंगे, स्पेशली C सर्टिफिकेट वालों का तो पुराने पैटर्न पे ये काम हो रहा है, B सर्टिफिकेट वालों का ज़्यादा